click on this practical script, and after that just run on the script. It will take a few seconds to run, and let it get run. Sure, Jaida, sure, don't worry. If when you try to run this script, and if it says that remove the session history, click that tick and then perform the action. And now it is running the script. It will take for a few seconds. It is creating all the instances of the schema from this script. So once again, I welcome you all, those who have just joined us. I recommend all of you, please just create a fresh new session. Inside the session, just create your instances of the schema. I'm creating instances of the schema for practicals. It is trying to run. Let it run time now. Okay, Kumar Saurabh, if it is showing that proxy errors, so no issues, there's no issue. You can directly go to the SQL worksheet. You can go to directly SQL worksheet, or you can first check the schema. If you can see all the tables that are already generated, it means everything is okay. All right, Kumar Saurabh. So even if it's showing proxy error, don't worry. Just click on the schema and verify whether all the instances of the schema has been created or not. So here all the tables is created. So once it is created, now come back to the SQL worksheet. So एक बार जरा क्विक recap करते हैं हम लोग थोड़ा सा जल्दी से fast. So by the time the participant are joining, let's recap. So yesterday I discussed about some terminologies, like some terms. Here I was discussing about projection. Projection means when I don't want to select all the columns. Jab out of multiple columns, if I have to select a few specific number of columns. So that concept I told was projection. That is known as projection. तो जब हम सेलेक्ट के बाद स्टार लगाते हैं तो स्टार से सारा डेटा निकल के आ जाता है, तो उसे प्रोजेक्शन नहीं बोलते. प्रोजेक्शन का मतलब है सारे कॉलम में से कुछ जो इम्पोर्टेंट के जो हमारे काम के हैं वो डेटा हमें निकालना है. जैसे मैंने कहा स्टूडेंट का डेटा था, मुझे किसी पर्सन को कांटेक्ट करना था, तो मुझे क्या चाहिए, डेटाबेस में से उसका रोल नंबर आ जाए, उसका नेम आ जाए और फोन नंबर आ जाए. बाकी मुझे उससे बाकी डिटेल का मुझे जरूरत ही नहीं है. तो जो मुझे रिक्वायर्ड सिर्फ उतना ही कॉलम का डेटा निकालना, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज प्रोजेक्शन. लेकिन क्या होता है, डेटा टेबल में कई बार मिलियंस ऑफ रोज होती हैं, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ रोज होती हैं, तो उसमें से समटाइम्स सारे रिकॉर्ड हमारे यूजफुल नहीं होते. जैसे मैंने कहा मुझे सारे स्टूडेंट्स निकालने हैं जो दैट बिलोंग टू द स्टेट बिहार, मुझे वो सारे स्टूडेंट निकालने हैं दैट बिलोंग टू द उत्तर प्रदेश, मुझे वो सारे स्टूडेंट निकालने हैं जो दैट बिलोंग टू उत्तराखंड. तो क्या मुझे सारे स्टूडेंट से नहीं, आई ऑलराइट. सिमरन, आपको वॉइस प्रॉब्लम हो रही है. एक बार मुझे बाकी सब लोग प्लीज गिव मी कंफर्मेशन, क्या मेरी वॉइस आ रही है, बिकॉज सिमरन सेड दैट आई थिंक वॉइस नहीं आ रही है. प्लीज गिव मी कोई कंफर्मेशन. ऑडिबल है? ओके.
All right. Okay. So, Simran, it seems like some problem is from your side because almost everybody confirmed that I am audible to them. So it may be problem, हो सकता है कि प्रॉब्लम शायद आपके नेटवर्क साइड में हो, और सिमरन बैड वेदर कंडीशन की भी वजह से हो सकता है. तो अगर okay, because almost everyone said that my voice is clear. So अगर नहीं आ रही है voice, तो it could be possible that there could be a network issue. But let me check because from my side everything is good. But still, let me recheck one more time. Okay, Rajnish, the same could be the issue. I think try to ऐसी जगह पर जहाँ पे आपके फोन का नेटवर्क, अगर आप फोन से चला रहे हैं तो फोन का नेटवर्क बेहतर हो. Cross check and everything from my side is okay. Okay, but now please just give me confirmation, Saurabh. Okay, okay, all right. Okay, so now everything is okay. All right. So Simran, please give me confirmation. Rajnish, now is it better? Okay, so please let's start. Okay. So let's continue. Okay. Thank you so much, Rajnish. Thank you very much. Thank you so much. So it could be possible कि sometime कभी कभी weather condition की वजह से होता है. It's okay. So चलिए start करते हैं. So मैं ये बताया था कि जब हम सारे कॉलम में से कुछ कॉलम निकालते हैं तो उसे प्रोजेक्शन बोला जाता है. ऐसे जब सारी रोज में से, ये देखिए पिंक कलर की जो रोज है, सबको हमने पिंक नहीं किया, कुछ रोज को हमने सिलेक्ट करके निकाल लिया. जैसे मैंने कहा सारे डेटाबेस में से जितने बिहार के स्टूडेंट्स हैं उनको सिलेक्ट करना है, जितने उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं उनको सिलेक्ट करना है. तो जब रोज में से रिस्ट्रिक्शन लगा के हम सिलेक्ट करते हैं तो उसे सिलेक्शन बोलते हैं. अच्छा, जिसको हम सिलेक्शन बोल रहे हैं, कुछ ऑथर इसको रिस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं. तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिलेक्शन या रिस्ट्रिक्शन बात एक ही है. सिलेक्शन रिस्ट्रिक्शन, आर फॉर रिस्ट्रिक्शन का मतलब है आर फॉर रोज, कि जितनी रोज है उसमें से कुछ कम रोज निकालना. तो वो रोज कम कैसे करेंगे? किसी कंडीशन पे बेस्ड. और इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट होता है ज्वाइन. ज्वाइन का मतलब दो टेबल को जोड़ करके, दो टेबल को मिला करके हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं. तो जब भी दो टेबल को ज्वाइन करना होगा तो कोई एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जो सेम कॉलम इस टेबल में है, तो वही वाला कॉलम इस टेबल में भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए. तो देन इसके अलावा ये सिंटैक्स हम आपको ऑलरेडी कल बता ही चुके हैं कि सेलेक्ट के बाद स्टार लिखते हैं. और ये सिंटैक्स हमने बताया था. पाइप सिंबल का मतलब होता है कि या तो स्टार यूज करिए या स्टार के बाद का पूरा एक्सप्रेशन. तो एक करली ब्रैकेट बता रहे हैं कि इसके बाद का जो पूरा एक्सप्रेशन है ये दे सकते हैं, या पाइप के पहले का स्टार. और जब भी ये स्क्वायर ब्रैकेट में कोई चीज दिखे तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है ऑप्शनल सिंटैक्स. आई रिपीट, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं. पूरे आरडीबीएमएस में कहीं पे भी स्क्वायर ब्रैकेट दिख जाए, देखो पूरे इसमें बॉडमास वाला ब्रैकेट नहीं दिख रहा है आपको. बॉडमास का अपना अलग पर्पज है. बॉडमास हम आपको सिखा चुके हैं, वो ऑपरेटर की प्रेसिडेंस चेंज करने के लिए जो बचपन में क्लास 4th 5th 6th में आपने जो बॉडमास रूल पढ़ा था वो काम आता है. लेकिन उसके अलावा
जो स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं ये होता है ऑप्शनल सिंटेक्स। ऑप्शनल का मतलब इनको यूज करना जरूरी नहीं है। आई रिपीट, जरूरी नहीं है। लेकिन जो चीज स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं है वो देना जरूरी है। तो इसका मतलब है डिस्टिंक्ट कीवर्ड देना कंपल्सरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। लेकिन कॉलम के नेम देना या कोई एक्सप्रेशन देना जरूरी है। अब मुझे होता है एक्सप्रेशन का एलियास भी तो कैपिटल, एलियास भी तो स्क्वायर ब्रैकेट में है। तो अभी आपको बताएंगे कि एलियास क्या होता है। लेकिन एक चीज तो समझ रहा है कि जैसे मैंने कहा डिस्टिंक्ट ऑप्शनल सिंटैक्स है, वैसे ही एलियास भी ऑप्शनल सिंटैक्स है। और कॉमा के बाद डॉट 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 लगा, तो डॉट 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 का मतलब जो ये पहले वाला एक्सप्रेशन था यही चीज कॉमा के बाद और बहुत सारे भी हो सकते हैं। और इस तरह से पूरी लिस्ट देने के बाद तो ये जो करली ब्रैकेट होता है ये बताता है कि इस करली ब्रैकेट को हटा के इसके बदले में, याद रखिएगा जब भी कोई चीज करली ब्रैकेट में दिया होता है इसका मतलब है इसको हटा के इसके बदले में इस तरह की कई चीजें हम रिपीटेशन दे सकते हैं। तो सिंपल आपने देखा होगा बहुत सारे कॉलम नेम हम देते हैं ना, जैसे नेम कॉमा फोन नंबर, तो वो सब इस एक्सप्रेशन में आ जाता है। और सारे कॉलम नेम बताने के बाद फ्रॉम टेबल, तो यहाँ पे कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो आपके लिए नए होंगे। पहला कि डिस्टिंक्ट क्या होता है और एलियास क्या होता है। तो एनीवे पूरे एसक्यूएल में जितने बार भी सेलेक्ट यूज किया जाएगा उसका ये कोर कॉन्सेप्ट है या कोर सिंटेक्स है। जितनी बार भी जहां भी जब भी, जितनी बार भी जहां भी और जब भी आप सेलेक्ट क्वेरी लिखेंगे ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं अब थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइए एक ऑप्शनल सिंटेक्स का सिंबल मैंने कौन सा बताया, जल्दी से सब बच्चे चैट बॉक्स में लिख के बताइए। ऑप्शनल सिंटेक्स रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है? स्क्वायर ब्रैकेट, वेरी गुड। और सिंबल रिप्रेजेंट करने के लिए सिंटेक्स में, और सिंबल रिप्रेजेंट करने के लिए पाइप सिंबल। अदर्स बैकस्लैश नहीं है बच्चा, अदर्स बैकस्लैश नहीं। और सिंबल के लिए ये पाइप सिंबल होता है जो आपका पाइप सिंबल, ये आपका जो कीबोर्ड में जहां पे जिधर एंटर की होता है, एंटर के आसपास देखिए जहां पे बैकवर्ड स्लैश होता है उसी उसी बटन के ऊपर हाँ हाँ मिल गया सर, मिल गया। ओके। वो और एक्चुअली से शिफ्ट दबा के डालना था ना, तो मैं सही यस दबा। यस 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 शिफ्ट के साथ करना था, राइट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेल डन वेल डन। ओके, सो ये सिंटेक्स था, फैंटास्टिक टू ऑल। सो ये मतलब पूरी पूरी दुनिया में जितनी भी सिलेक्शन की क्वेरी होगी उसका कोर कॉन्सेप्ट बस यही है। बस आपका बड़े से बड़ा एक्सप्रेशन में क्या होगा, ये एक्सप्रेशन बार बार रिपीट होगा। लेकिन क्या बोला, या तो स्टार यूज करी या एक्सप्रेशन, लेकिन दोनों अलाउड हम लोग नॉर्मली नहीं करते हैं। इनमें से कोई एक, ये वाला यूज करिए या ये वाला यूज करिए। तो ये हम आपको बता चुके हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। तो डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, मैनेजर आईडी, लोकेशन आईडी। तो डिपार्टमेंट वाले टेबल में से स्टार का मतलब सारे कॉलम। तो मैंने बोला कि ये प्रोजेक्शन नहीं है, ये प्रोजेक्शन नहीं है, राइट। ये प्रोजेक्शन है जब हम सेलेक्टिंग द स्पेसिफिक कॉलम। तब देखिए डिपार्टमेंट आईडी और लोकेशन आईडी, ये हम बता रहे हैं डिपार्टमेंट से एस लगा हुआ है कि डिपार्टमेंट आईडी और लोकेशन आईडी ये दोनों बताए, ये दोनों बताए। जबकि प्रीवियस वाले में क्या था, ये देखिए डिपार्टमेंट आईडी पहला कॉलम है और लोकेशन आईडी आखिरी कॉलम है। तो पहली वैल्यू 10 है और यहाँ पे 1700 है, 10 और 1700। अभी तो छोटा टेबल था ना, अगर बहुत बड़ा टेबल होता तो उसमें केस में क्या था, बहुत ज्यादा डेटा आ जाता इसमें।
सो यहाँ पर हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी एंड लोकेशन आईडी है। तो मुझे बताइए किसी क्वेरी को देख करके क्या अब आप समझ पाएंगे कि प्रोजेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है? ट्रिक मैंने क्या बताया, स्टार अगर नहीं है तो स्टार के बदले कॉलम नेम है तो हम बोलेंगे वो प्रोजेक्शन वाली सेलेक्ट क्वेरी है। यस, स्टार नहीं हो तो और एक आगे का रूल, कैसे पता लगेगा कि सिलेक्शन है या रिस्ट्रिक्शन? हमें वेयर क्लॉज राइट वाला ये हमने स्किप करा दिया था, बट आई थिंक प्लस और मल्टीप्लाइड वाला शायद कराया था हम लोगों ने। बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि नाउ यू ऑल आर ऑलरेडी फैमिलियर विद दैट। ओके, तो ये हमने आपको बताया था लास्ट नेम कॉमा सैलरी प्लस 300 फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो ये प्लस हो गया था, तो यहाँ पे वेरीफाई करिए, ये 2400 है तो यहाँ पे 2400 24,000 था, 24,300 हो गया था। सो इस तरह से हमारे पास ये डेटा सेलेक्ट होकर के आ रहा था। इसके बाद हमने एक चीज और सिखाई थी कि मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ऑपरेटर का प्रीसिडेंस, तो प्रीसिडेंस में बाय डिफॉल्ट बॉडमास वाला रूल चलेगा। तो इसमें क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा तो सैलरी 12 से मल्टीप्लाई होगी तो पहले एनुअल सैलरी निकल जाएगी। एनुअल सैलरी कैलकुलेट होने के बाद उस एनुअल सैलरी में 100 रुपीज ऐड होगा, जबकि यहाँ पर पहले ये 100 रुपीज मंथली सैलरी में ऐड होगा और उसके बाद 12 से मल्टीप्लाई होकर के एनुअल सैलरी कैलकुलेट होगा। तो ये दो तरीके थे। तो हमने इस राउंड ब्रैकेट का यूज ये ऑपरेटर की प्रेसिडेंस में यूज किया, इसीलिए सिंटेक्स में हम ये वाला सिंबल यूज नहीं किए थे। सिंटेक्स में ये वाला हमने यूज नहीं किया था। चेक करिए, यहाँ पे हमने राउंड ब्रैकेट यूज नहीं किया था। अब एक ओके, हाँ, एक पहले मैं चाहूंगा कि सब बच्चे जो है एक बहुत ही बढ़िया से एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन पूछा है सिमरन ने। वैसे सिमरन ये अभी आज का एक टॉपिक था, एग्जैक्टली सेम अभी हम लोग आज ही इसको सीखेंगे, थोड़ा सा काफी डेप्थ में टॉपिक सीखेंगे। वैसे मैंने बोला था हम लोग थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, लेकिन अभी सिमरन ने क्वेश्चन पूछा है तो ये थोड़ा सा मैं इसका आंसर अभी बताना चाहूंगा। लेट्स गो बैक टू दैट जो सिमरन ने पूछा है। यहाँ पे देखिए हमारे टेबल में लास्ट नेम का तो रियल कॉलम है, हमारे स्कीमा में ये जो नेम है, हमारे स्कीमा में जो नेम है इस नाम का फिजिकल कॉलम है ये वाला। सैलरी नाम हमारे स्कीमा में जो नाम लिखा है ना सैलरी, तो इस नाम का एक्चुअल फिजिकल कॉलम है। लेकिन सैलरी प्लस 300 हमने स्कीमा में जो ये नेम ये जो एक्सप्रेशन लिखा है, इस एक्सप्रेशन नाम का कोई फिजिकल कॉलम इंस्टेंस में नहीं है। एक बार मेरी बात फिर से सुनिए, मैंने कहा ये तीसरे वाले एक्सप्रेशन के नाम से कोई फिजिकल कॉलम नहीं है। अब मेरी बात समझिए, मैंने कहा स्कीमा में तो है, हमारे क्वेरी के अंदर तो है, लेकिन टेबल के इंस्टेंस में इस नाम का कोई फिजिकल एक्चुअल कॉलम नहीं है। तो इस कॉलम के नीचे जो वैल्यूज आएंगी वो वैल्यू इस सैलरी वाले कॉलम पे ये अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने से जो रिजल्ट आएगा वो प्रिंट होगा। तो इस वाले कॉलम का कोई अभी तक नाम तो था नहीं, क्योंकि ये वाला कॉलम हमारे डेटाबेस में तो है ही नहीं। तो इसलिए हमारा ऑरेकल क्या करता है कि जब इस वाले कॉलम का कोई ना, ये वाला कॉलम तो डेटाबेस में है ही नहीं, तो हम जब स्क्रीन पे इसका आउटपुट प्रिंट करेगा ऑरेकल, तो हमें पता कैसे लगेगा कि ये क्या है। तो ऑरेकल इंटेलिजेंटली क्या करता है कि इस कॉलम में जो वैल्यूज आ रही हैं जिस एक्सप्रेशन से आ रही हैं
एग्जैक्टली उसी एक्सप्रेशन से, एग्जैक्टली उसी एक्सप्रेशन से क्या कर रहा है वो, उसको एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन से वो हेडिंग में प्रिंट कर रहा है। सो इस नाम का कोई एग्जैक्ट कॉलम हमारे पास नहीं है, तो इससे पता लग जा रहा है कि ये कॉलम हमारे पास फिजिकली अवेलेबल नहीं है, हमने किसी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन से सॉल्व किया। ऑलराइट सिमरन, नाउ प्लीज गिव मी कंफर्मेशन नाउ, आर यू ओके विद दैट कि ये कॉलम अपने आप ऑरेकल ने एक्सप्रेशन के रिजल्ट से जनरेट किया है, ये रिजल्ट से आया है, ना कि टेबल के किसी कॉलम से। ऑलराइट, ये अपने आप टेबल से नहीं आया, ये हमारे टेबल के कॉलम के एक्सप्रेशन के रिजल्ट से आया है। सक्षम, यस यस वी कैन रीनेम इट, बहुत आसान है, उसी को हम बोलते हैं एलियास। क्या बोलते हैं? एलियास। आपको भी हमने थोड़ी देर पहले याद होगा इसका सिंटैक्स दिखाया था, थोड़ी देर पहले, जस्ट अभी पहले सिंटैक्स दिखाया था। उस सिंटैक्स में आप देखेंगे ये लिखा है टर्म एलियास, यही निकनेम के लिए। तो अभी हम लोग थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं, ये भी आज का ही टॉपिक है, मोस्ट प्रोबेबली हम आज ही इसको करेंगे। ऑलराइट, तो अभी हम इसको आगे भी सीखेंगे, बट मुझे बताइए ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया जो सिमरन ने क्वेश्चन पूछा था कि ये आता कहाँ से है। तो ये कॉलम ही इस तीसरे वाले एक्सप्रेशन के रिजल्ट से आ रहा है, ये ओरिजिनली हमारे पास नहीं था। ओके, तो जरा देखिए, जब हमने ये एक्सप्रेशन दिया तो हेडिंग क्या आ गया, 12 इंटू सैलरी प्लस 100। अच्छा, ये दिया ब्रैकेट लगा के, तो 12 इंटू ब्रैकेट में सैलरी प्लस 100, तो 12 इंटू ब्रैकेट में सैलरी प्लस 100। तो ये क्लियरली पता लग रहा है कि जो रिजल्ट आ रहा है वो इस एक्सप्रेशन की वजह से आ रहा है। तो ये इसमें इफेक्ट होता है हमारे, दिस इज द इफेक्ट ऑफ ऑपरेटर्स प्रीसीडेंस। सो इसके अलावा एक नल वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, तो नल वैल्यू के कॉन्सेप्ट को जरा बताने के लिए पहले जरा कोई क्वेरी रन करा लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, और मैं इसको रन करा रहा हूँ सो दैट कि एटलीस्ट सेशन मेंटेन रहे, नहीं तो लॉग आउट हो जाएगा। तो ओके, सो यहाँ पे जो क्वेरी थी, लास्ट नेम, जॉब आईडी, सैलरी और कमीशन परसेंटेज। तो आपने देखा होगा जो कमीशन परसेंटेज है, मैंने आप लोग से कल प्रैक्टिकल कराया था, उसमें देखा ना कमीशन परसेंटेज सारे एम्प्लॉय को नहीं मिल रहा है। सो ओनली दोज एम्प्लॉयज आर गेटिंग कमीशन परसेंटेज विच बिलोंग टू द सेल्स डिपार्टमेंट। तो जो टीम सेल्स डिपार्टमेंट को बिलोंग कर रही है, जो सेल्स वाले हैं, सिर्फ सेल्स वालों को ही कमीशन परसेंटेज मिल रहा है, बाकी को हम वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं। तो जिनको हमने कोई वैल्यू नहीं दिया, जैसे ये देखिए, ये पर्सन है, इसकी जॉब आईडी क्या है, सेल्स मैन या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। जो सेल्स मैन है या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, उन सबको कमीशन मिल रहा है, बाकी सबको कमीशन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे जो मैंने 3 डॉट 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 बताया, इसका मतलब है कि इसमें और भी रिकॉर्ड है, मैंने कुछ रिकॉर्ड आपको दिखाए हैं यहाँ पे। सो ये जो रिकॉर्ड शो किया है इसमें इसको यहाँ पे हम बोलते हैं नल वैल्यू। तो अ नल इज अ वैल्यू दैट इज अनअवेलेबल, अनअसाइंड, अननोन और इनएप्लीकेबल। याद रखिएगा, नल को हम जीरो नहीं बोलते। आई रिपीट, नल इज नॉट द सेम एज जीरो और एज अ ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस भी अलग चीज होता है, उसे भी नल नहीं बोलते। नल का मतलब है एम्प्टी, नल का मतलब है अनअवेलेबल। अच्छा, इसको मैं ऐसे समझाऊं, आपने क्या किया, अपने बैच में सारे बच्चों का फोन नंबर कलेक्ट करना था,
सबका फोन नंबर मिल गया, एक स्टूडेंट का फोन नंबर आपको नहीं मिला। तो मुझे बताइए, आपको फोन नंबर ही तो लेना था, तो आपने कहा एक बच्चे का नहीं मिला, तो नहीं मिला तो चलो जीरो मान लेते हैं। तो अगर किसी का फोन नंबर नहीं है तो आप क्या वहां पे जीरो मान लेंगे और जीरो नंबर डायल करेंगे तो क्या उसको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसका मतलब है एब्सेंस ऑफ डेटा को कभी भी जीरो नहीं कंसीडर करना चाहिए। जीरो तो एक फिक्स इंटीजर वैल्यू है विच इज वन लेस देन वन एंड वन ग्रेटर देन -1। मीन्स जीरो तो एक फिक्स, एक पर्टिकुलर वन यूनिक न्यूमेरिक वैल्यू है। सो यहाँ पे बहुत क्लियर शब्दों में लिखा है कि नल, पूरे एसक्यूएल में नल के लिए थोड़ा सा अलग लॉजिक लिखा जाता है। नल के लिए थोड़ा सा अलग लॉजिक लिखा जाता है। तो याद रखिए, नल को क्या बोलेंगे? नल इज अ वैल्यू दैट इज अनअवेलेबल, अनअसाइंड, अननोन और इनएप्लीकेबल। ऐसी वैल्यू जो हमें पता नहीं है, हमें असाइन नहीं की गई है, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, या वो वैल्यू हमारे यहाँ इस पे अप्लाई ही नहीं होता है। जैसे मैंने कहा, कमीशन परसेंटेज सेल को छोड़ के बाकी के लिए वैल्यू है ही नहीं, दैट इज नॉट एप्लीकेबल। तो नल वाली वैल्यू क्या होगा? ब्लैंक सेल प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या प्रिंट होता है? इट विल प्रिंट अ ब्लैंक सेल, दैट विल प्रिंट अ ब्लैंक सेल। सो ये ऑलरेडी हम करके आपको दिखा चुके हैं। आई थिंक आप लोगों ने ये करके देखा भी है, परसेंटेज वाला पार्ट। और नल वैल्यू के साथ एक आपको रूल है, ये इसको आपको लर्न भी करना होगा, ये रूल लर्न करना पड़ेगा कि ऐसा कोई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जिसमें एक वैल्यू अगर नल है तो उस पूरे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का रिजल्ट भी नल आएगा। अच्छा, इसको ऐसे समझिए, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय जीरो क्या आएगा? जीरो ही तो हो जाता है। लेकिन नल जीरो नहीं होता। लेकिन ये समझिए कि पूरे एक्सप्रेशन में, बहुत बड़े एक्सप्रेशन में एक भी नल वैल्यू है तो पूरा रिजल्ट ही नल हो जाएगा। मतलब एक भी वैल्यू अननोन है तो पूरी वैल्यू ही अननोन हो जाएगी या अनअवेलेबल हो जाएगी। इसको आप ऐसे समझिए कि सपोज को एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन लिखा था। मैंने कहा 2 × A + B × C मैंने कहा 9 + 3 × C। इसमें ए की वैल्यू भी पता थी, बी की वैल्यू पता थी, हमें सी की वैल्यू नल थी। तो मैं पूछे इस पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आएगा? तो इनमें से एक भी वैल्यू अगर नल हो गई तो पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट भी नल आएगा। और नल हम यहाँ पर लोअर केस में लिखते हैं। और नल वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो कुछ प्रिंट नहीं होगा। आप देख रहे हैं, कुछ प्रिंट नहीं हुआ, कुछ प्रिंट नहीं हुआ, कुछ प्रिंट नहीं, कुछ प्रिंट नहीं, कुछ नहीं प्रिंट हुआ। तो जिनमें नल वैल्यू होती है तो नल वैल्यू के एक्सप्रेशन का रिजल्ट भी नल आएगा। और नल को प्रिंट करेंगे, नल का मतलब नथिंग, नल का मतलब जीरो नहीं होता, नल का मतलब नथिंग होता है। और जब नथिंग को प्रिंट कराएंगे तो नथिंग होगा, कुछ नहीं प्रिंट होगा, नथिंग विल गेट प्रिंट ऑन द स्क्रीन। सो जरा मुझे जल्दी से बताइए, ये रूल, आर यू ओके विद दैट नल वाला रूल? और इस नल का थोड़ा अलग बिहेवियर है, तो पूरे डीबीएमएस में हम नल को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ते हैं। नल को हमें थोड़ा अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है, राइट? अब
ऑलराइट, सो यहाँ पे एक चीज और देखिए कि यहाँ पे लिखा है कॉलम एलियास। तो आई थिंक आप में से एक बच्चे ने इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। कॉलम एलियास, एलियास का मतलब होता है निक नेम। एलियास का मतलब क्या होता है? निक नेम, या किसी का जैसे आपने देखा ना, आपके कुछ फ्रेंड्स होते हैं जिनका घर में नाम कुछ और होता है और एक्चुअल नेम कुछ और होता है। मीन्स घर वाले लोग प्यार से किसी और शॉर्टकट नेम से बुलाते हैं और उसका एक्चुअल ऑफिशियल नेम अलग होता है। तो उसी को हम यहाँ पे एलियास बोलते हैं। एलियास का मतलब होता है दूसरा निक नेम, छोटा सा निक नेम, एक छोटा सा निक नेम। सो एन किसी कॉलम का एलियास मतलब किस लिए होता है? किसी कॉलम की हेडिंग को रीनेम करना। तो ये बेसिकली एलियासिंग कहाँ पे काम आता है, ये कब हेल्प करता है? इट इज यूजफुल विद द कैलकुलेशंस। अभी जो आपको दिखाया था, जो कि कैलकुलेशन से जो कॉलम जनरेट होता है वो एक्चुअल फिजिकल में तो एग्जिस्ट करता नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको एक नया निकनेम देते हैं। तो उसको नया निकनेम देने के लिए एलियास यूज होता है। तो एलियास बताने का तरीका क्या होता है? इमीडिएटली फॉलो द कॉलम नेम। करे कि आप एक्चुअल कॉलम नेम के बाद या एक्सप्रेशन के तुरंत बाद अपना कॉलम का नेम दे सकते हैं। एंड देयर कैन ऑल्सो बी एन ऑप्शनल एज कीवर्ड बिटवीन द कॉलम नेम एंड एलियास। इन्होंने बोला है कि अगर आपको किसी एक्सप्रेशन का नया निकनेम देना है तो आप एक कीवर्ड है एज। सो ये एज ऑप्शनल कीवर्ड है, मतलब ये कंपल्सरी नहीं है, आप चाहो तो दे दो। बट मैं चाहूंगा कि आप अभी शुरुआत में आप ये कीवर्ड यूज करिए। और सब इससे क्या होगा, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि वो निकनेम है कि नहीं। और क्या करें, इट रिक्वायर्स डबल कोटेशन मार्क। ये दोनों पॉइंट आपको समझने हैं कि हमें डबल कोटेशन मार्क लगाना पड़ेगा if it contains space or special character or if it is a case sensitive। इसका मतलब क्या होता है समझिए, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज मैंने कहा हमें देना था टोटल, टोटल लिखना था, सिर्फ टोटल लिखना था। तो आप टोटल को आप चाहे तो कोट्स में लिखिए, चाहे तो डबल कोट्स में लिखिए, या बिना कोट्स के भी लिखिए, दोनों ही चलेगा, दोनों ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मैंने कहा आपको ये लिखना हो टोटल सैलरी। तो जिस कॉलम के हेडिंग में, जिस कॉलम की हेडिंग में बीच में स्पेस आ रहा हो तो उसको हम डबल कोड में लिखेंगे, या अगर बिना डबल कोड्स के लिखेंगे तो वो कॉलम हेडिंग अपर केस में प्रिंट होता है। तो आपने कहा नहीं, जैसा दिया है वैसा ही प्रिंट हो, तो डबल कोड्स आपको देना पड़ेगा। तो इसको पहले जरा प्रैक्टिकल से समझते हैं, फिर इसको वापस आते हैं। क्या कह रहा है, डबल कोट कब चाहिए? जब हमारे नेम में स्पेस हो। यस यस एग्जैक्टली, यस रवि। सो टोटल और फिर एक स्पेस देके फिर सैलरी लगेगा, या स्पेशल कैरेक्टर हो, या हमें केस सेंसिटिव की जैसा लिखा है वैसा ही प्रिंट। इसको एक काम करते हैं ना, इसको एक जरा प्रैक्टिकल से समझते हैं, फिर वापस को कॉन्सेप्ट को करेंगे। जैसे मैंने कहा, ये क्या लिखा है, सेलेक्ट लास्ट नेम एज नेम, सेलेक्ट लास्ट नेम एज नेम कॉमा कमीशन परसेंटेज को छोटा सा नाम कमीशन COWM कर दिया फ्रॉम एम्प्लॉय। तो जब रिजल्ट आएगा तो लास्ट अंडरस्कोर नेम, सिर्फ नेम प्रिंट होगा। तो यहाँ पे देखिए केवल नेम प्रिंट हुआ। अब कमीशन अंडरस्कोर PCT नहीं प्रिंट हो रहा है, सिर्फ कमीशन प्रिंट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ये एज कीवर्ड ऑप्शनल है। तो देखिए पहले वाले में एज दिया है, दूसरे वाले में हमें एज नहीं दिया हुआ है। लेकिन ये कह रहे हैं कि निकनेम आप डबल कोड में भी दे सकते हैं, डबल कोड में भी दे सकते हैं। बट डबल कोड नॉर्मली तब देना होता है कि अगर आप ये डबल कोड नहीं देंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने नेम लिखा, तो बाय डिफॉल्ट ये कैपिटल लेटर में अपने आप अपर केस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट विल गेट कन्वर्टेड
ये कॉलम का नया हेडिंग अपने आप अपर केस में प्रिंट होगा। बट आपने कहा नहीं, जैसा हमने दिया वैसा प्रिंट हो, तो उसको हम डबल कोट्स में टाइप करके देंगे। तो देखो एन कैपिटल और बाकी सब लोअर केस में आ रहा है। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, डबल कोट्स में लिखा है तो जैसा लिखा है, जितने स्पेस जैसा लिखा है जिस केस में, डिट्टो वैसा ही प्रिंट होगा। तो जरा जल्दी से आप सब लोग जरा ये दोनों क्वेरीज रन कराइए, जरा जल्दी से रन कराइए, मुझे बताइए क्या रन हो रहा है। जल्दी से रन कराइए, और जब क्वेरी रन हो जाए तो वो इसमें मुझे चैट मैसेज में भेजेंगे आप अपनी क्वेरी। अगर आपका ये क्वेरी रन हो जा रहा है तो सक्सेसफुल रन करने वाली क्वेरी फिर मुझे चैट मैसेज में भेजेंगे। इसी को रन कराइए जल्दी से। ओके, वेल डन। ओके, तो वेरी गुड। ऑलराइट, सो इसमें याद रखिए, इसमें एज, अच्छा एक ही और, ये जो एज है ये तो हमारा एसक्यूएल का सिंटैक्स है ना, और एसक्यूएल तो आपको समझा ही चुके हैं, बाय डिफॉल्ट केस सेंसिटिव नहीं होता। तो आप एज को चाहे अपर केस में टाइप करिए चाहे लोअर केस में, दोनों ही वर्क करते हैं। रवि, स्क्रिप्ट में तो बस आपको क्वेरी रन करनी है ना। आपने कल वाले तो प्रैक्टिकल कराए होंगे ना रवि, या आप? ओके ओके, ऑलराइट। सो रवि, आपको बस इतना करना है, जो आपको स्क्रिप्ट को रन कराना है, और उसके बाद ये स्कीमा में जाके चेक करना है कि आपके सारे टेबल हैं, और सारे टेबल हैं तो एसक्यूएल वर्कशीट में जाना है, और एसक्यूएल वर्कशीट में जाने के बाद ये वाली जो क्वेरी थी, ये वाली क्वेरी आपको रन करनी है, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये वाली क्वेरी जो थी, मैं एक बार और ये डबल कोड भी ऑप्शनल है, लेकिन डबल
कोड लगाना तब जरूरी है जब आप चाहते हैं कि वैल्यू थोड़ा सा अब कैमल केस में प्रिंट हो या बीच में स्पेस है तब। चलिए एक बार सब लोग एक काम करिए, ऐसा कॉलम नेम दीजिए जिसमें स्पेस हो लेकिन डबल कोड ना हो, फिर देखिए क्या एरर आ रही क्या। जैसे इसमें डबल कोड हटा दीजिए, ऐसा ऐसा नेम दीजिए, ऐसा एलियास नेम कर दीजिए और एस कीवर्ड लगा के दीजिएगा, एस कीवर्ड लगा के दीजिए और विदाउट डबल कोट्स। तो ये एरर आना चाहिए, चेक करिए। तो क्या एरर का कोई कोड दिखा रहा है क्या? इज इट शोइंग सम एरर कोड? ओके, ठीक है। ओके, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। सो इसके अलावा एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑपरेटर है जो भी हम लोग को आगे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, दैट इज कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। अच्छा, उससे पहले मुझे बताइए, नाउ एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलम एलियास? कॉलम एलियास कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? एंड जल्दी से मुझे बताइए ना, और कंफर्टेबल? सो बिल्कुल अच्छे से में आ गया सारे रूल्स। सो इट मीन्स जो सिंटैक्स था इस सिंटैक्स में, अब बताइए क्या ये समझ में आ रहा है क्या कि एक्सप्रेशन के बाद एलियास होगा, वो भी ऑप्शनल। ये कह रहे हैं एक्सप्रेशन के बाद उस एक्सप्रेशन का एलियास होगा, लेकिन वो एलियास देना भी ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है। ऋषभ, आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया, थोड़ा मुझे बताइए प्लीज गिव मी कौन सा पार्ट है, सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड इट। सर मेरा सेशन एक्सपायर हो गया था अचानक, फिर वो करने अच्छा लग अच्छा, गए थे। ओके ओके ओके। सो वो आपने वाला पार्ट ही इसका, ये वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था हमने, ये वाले ये सारे रूल्स। एलियास वाला नहीं अच्छा, समझ में आया एलियास सर। ओके। एलियास का मतलब होता है किसी कॉलम का नया कॉलम हेडिंग देना, किसी नए कॉलम का नया कॉलम हेडिंग देना। जैसे कि ये देखिए, जब हमने लिखा ना सैलरी इंटू 12, राइट, इफ यू राइट सैलरी इंटू 12, तो जो आंसर में हेडिंग आता था ना, वो लिख के आता था सैलरी इंटू 12 ही लिख के आता था। लेकिन अगर हम जैसे एस के बाद ये लिख देंगे एनुअल सैलरी, तब ये एक्सप्रेशन के बदले में ये लिख के आएगा, इस एक्सप्रेशन के बदले में ये हेडिंग आएगा। इसको ऐसे समझिए, देखिए बहुत अच्छे से आ जाएगा ऋषभ। यहाँ पे मैंने कहा कि ऋषभ यहाँ पे देखेंगे जैसे लिखा ना सेलेक्ट लास्ट नेम एज नेम, मैं ये सेम क्वेरी को ऋषभ यहाँ पे मैंने सेम चीज को क्या किया है, यहाँ पे एक बार ये एज नेम हटा दिया, एक बार हटा दिया, और यहाँ पे इसको हटा दिया, दोनों को हमने हटा दिया। और अब मैं ये इनफैक्ट दोनों ही क्वेरीज को रन कराने जा रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस जरा देख के मुझे बताएगा क्या आपको डिफरेंस लग रहा है। जैसे कि सबसे पहले इसमें था लास्ट नेम और कॉमा कमीशन परसेंट, तो इसके ऊपर जो हेडिंग आ रहा है डेटा के ऊपर, हेडिंग क्या आ रहा है, लास्ट नेम आ रहा है और कमीशन परसेंट। तो क्या नोटिस, तो नोटिस क्या किया आपने, बाय डिफॉल्ट जो एक्चुअल कॉलम नेम था वो कैपिटल लेटर में ट्रांसफॉर्म होके प्रिंट कर रहा है, कमीशन परसेंटेज ट्रांसफॉर्म होके प्रिंट कर रहा है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे सपोज ये प्रिंट आउट निकालना था, प्रिंट आउट में थोड़ा सा ये गंदा लग रहा है ना इस तरह से देखने में, तो आपको कॉलम की हेडिंग थोड़ी सी बहुत प्यारी सी, खूबसूरत सी, बहुत अच्छी सी बनानी थी। तो ये टेक्निकल नेम बदल के इनके बदले में कुछ अच्छे मीनिंगफुल डिस्क्रिप्टिव नेम डिस्प्ले करने थे। तो मैंने कहा लास्ट नेम के बदले में सिर्फ नेम लिख करके आए, कॉलम का हेडिंग चेंज हो जाए बस। तो आप देखिए इसी डेटा में हमने नीचे लर्न कराया है जहाँ पे ये, तो अब क्या हो रहा है, ये जो नीचे आउटपुट आ रहा है लास्ट नेम के बदले में हेडिंग चेंज हो गया और सिर्फ प्रिंट हो रहा है ओनली नेम। एंड कमीशन परसेंटेज, कमीशन पीसीटी के प्लेस पे अब नाम आ गया
COMM। तो ऐसे क्या होता है, उसको नया कॉलम हेडिंग का नेम मिल जाता है, वैल्यू चेंज नहीं होती है, सिर्फ हेडिंग का नेम चेंज होता है। Yes, sir. ऑलराइट, ओके। Yes, sir. यस, जो हेडिंग नेम है वो हम लोग नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली आप जो रूल्स आपके एक वेरिएबल आइडेंटिफायर के होते हैं वो सारे रूल यहाँ पे भी चलते हैं। मीन्स ये हम लोग जो निकनेम बना रहे हैं वो निकनेम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। और यस यस, एक चीज और, क्योंकि ये जो नेम चेंज हो रहा है ये ओरिजिनल टेबल में नहीं हो रहा है। इसको ऐसे समझिए क्या हो रहा है, इधर देखिए। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, मैं वो पीपीटी ओपन करता हूँ, उस पीपीटी से समझाने की कोशिश करता हूँ। जस्ट अ मिनट। नहीं है। पीपीटी में देखिए यहाँ पे क्या है कि जो ओवैस ने एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये देखिए कि हमारा फिजिकली डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, ओरेकल सर्वर पे, लेकिन हम कहाँ देख रहे होते हैं, अपने उसके किसी क्लाइंट से देख रहे होते हैं। एक्चुअल तो बैकएंड में हमारे ओरेकल सर्वर में डेटा स्टोर होता है ना। तो जहां पे एक्चुअल में टेबल में डेटा स्टोर होगा वहां पे तो कॉलम नेम ओरिजिनल जो टेबल बनाते टाइम गिवन था वही रहेगा, राइट। तो जब ये डेटा लेकर के यहाँ पे आता है, तो जहां से देखिए हमने तो कहा कि मुझे डिपार्टमेंट नेम निकालना है इसमें से, राइट। तो यहां से जाता है, लेकिन जब डेटा लेके आता है तो अगर आपने अलियासिंग नहीं करी है तो एक्चुअल कॉलम नेम को ही कैपिटल लेटर में करके प्रिंट करेगा। तो ये जो नेम है, ये जो नेम बदल रहा है, ये प्रिंटिंग के टाइम पे स्क्रीन पे बदल रहा है, ये ओरिजिनली यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। ऑलराइट, वैस आई थिंक क्लियर है कि तो जब हमने ये वैल्यू जो है ओरिजिनल फिजिकल इंस्टेंस में, फिजिकल सर्वर में तो चेंज किया ही नहीं है। जब फिजिकल सर्वर में चेंज किया ही नहीं है, तो अगर कोई दूसरी क्वेरी चला देते हैं या कोई दूसरा पर्सन क्वेरी चलाएगा तो उसे ओरिजिनल जो यहाँ पे फिजिकल नेम था उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, या उसने अपनी क्वेरी में जो नया निकनेम दिया होगा उसको मिलेगा। क्योंकि जैसे हमारे डेटाबेस सर्वर पे कई लोग कनेक्टेड होते हैं, वहां पे कई लोग कनेक्टेड होते हैं, दे विल बी कनेक्टेड विद दैट। सो यहाँ पे ऑलराइट अवेस, तो यहाँ पे डिलीट, यहाँ पे क्वेरी डिलीट करने का मतलब ही नहीं है। यहाँ पे तो डेटा जा रहा है, डेटा जब वापस आ रहा है तो प्रिंट करते टाइम ये वैल्यू बदल जा रही है, बस रिपोर्टिंग करते टाइम हमारा जो निकनेम होता है, एलियास होता है, वो आ जाता है। ऑलराइट अवेस, आई थिंक नाउ ऑलराइट, फैंटास्टिक। विकास आपने लेट ज्वाइन किया है। इनफैक्ट विकास मैंने तो अभी 2 बार ऑलरेडी रिपीट कर दिया है। विकास, जस्ट कैन यू डू मी अ फेवर, आप जो पार्ट थोड़ा सा छूटा है, मैं चाहूंगा कि आप एक बार अपने फ्रेंड से थोड़ा सा डिस्कस करिए, और जो पार्ट नहीं तो फिर मैं आपको हेल्प करूंगा, राइट। राइट, श्योर। सो थोड़ा सा अब हम इसमें आगे देखते हैं, एंड श्योर, नो इश्यूज विकास, डोंट वरी। आप एक बार डिस्कस करेगा डेफिनेटली, अगर नहीं हो पाएगा तो मैं आपको हेल्प करूंगा, आई विल हेल्प यू, बट एक बार खुद से ट्राई करिएगा, कोशिश करिएगा, ऑलराइट। तो मैंने ये एलियासिंग है, नल नल वैल्यू एलियासिंग, ये सारी चीजें अभी यहाँ पे डिस्कस करी है। इसके अलावा अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर।
All right. So there is a next operator, concatenation operator. ये भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल है. So concatenation operator पहले समझिए कि ये करता क्या है. It links the column or character string to the other column. ये पहले थोड़ा समझिए क्या है. It links the columns और character columns का या character strings को to other columns. And it is represented by two vertical bars. जो पाइपलाइन थी, जो और वाला सिंबल था, वो डबल पाइपलाइन वाला सिंबल था. वो डबल पाइपलाइन वाला सिंबल था, उसको यूज किया था उन्होंने. इस डबल पाइपलाइन से, ये वर्टिकल पाइपलाइन से ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर यूज होता है. इट क्रिएट्स अ रिजल्टेंट कॉलम दैट इज अ कैरेक्टर एक्सप्रेशन. इससे क्या मिलता है? कैरेक्टर. अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? न्यूमेरिक एक्सप्रेशन, कि नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे थे, नंबर को एडिशन कर रहे थे, डिवीजन कर रहे थे. लेकिन यहां पर कैरेक्टर का कॉन्कैटिनेशन हो रहा है, तो इसे कैरेक्टर एक्सप्रेशन बोलते हैं. जरा देखिए क्या कर रहा है कि जो लास्ट नेम और जॉब आईडी दोनों को मिला करके हम बोलेंगे कि वो हमारा एम्प्लॉय है. राइट. मैंने कहा लास्ट नेम और मतलब दोनों कॉलम की वैल्यू को जोड़ दिया, हमने ऐड कर दिया, एक साथ मिला दिया और दोनों को जोड़ करके फिर हमने उसको एक नया निकनेम दिया, एलियास. तो आपको एक कॉलम में दो कॉलम की वैल्यू मर्ज होके प्रिंट हो गई. देखिए यहाँ पे एम्प्लॉयज के अंदर क्या प्रिंट हो रहा है. एम्प्लॉयज के अंदर क्या प्रिंट हो रहा है? पहले जो किंग है, तो किंग तो ये उसका लास्ट नेम है, और एडी प्रेस उसका जॉब आईडी है. हाँ, लास्ट नेम सेम हो सकता है. यहाँ पे भी हमने वो प्राइमरी की और कंस्टेंट वो नहीं लगाया. हमने तो कहा है कि जो उसका लास्ट नेम है और ये दो कॉलम की वैल्यू को कॉन्कैटिनेट करके एक कॉलम में कैसे दिखाएं. कई बार क्या होता है, अच्छा इसका और अच्छा एग्जांपल बताएं. कई बार क्या होता है, हम यूजर से जब इनपुट कराते हैं तो उसका फर्स्ट नेम हम अलग मांगते हैं, सेकंड नेम हम अलग मानते हैं, लेकिन जब प्रिंट कराना होता है तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मिला के जोड़ के प्रिंट कराते हैं ना. तो उस टाइम पे जो हमें स्क्रीन पे डेटा प्रिंट करना होगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को जोड़ना होगा. तो उसके जोड़ने के लिए, दोनों को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे? ये पाइप सिंबल से कनेक्ट करेंगे. विल कनेक्ट बोथ ऑफ देम. कैसे लिखेंगे? लास्ट नेम फिर कनेक्ट करो फर्स्ट नेम, या फर्स्ट नेम कनेक्ट करो लास्ट नेम. एक्चुअली लास्ट नेम इसलिए लिखा है कि बेसिकली ऑनर देने के लिए इस तरह से लिखते हैं. आपने देखा होगा जब फ्लाइट में आप टिकट बुक कराते हैं तो आपको जो बोर्डिंग पास मिलता है उसमें भी क्या लिखा होता है? आपका लास्ट नेम पहले लिखा होता है, आपने देखा होगा, फिर कॉमा लगता है, फिर फर्स्ट नेम लिखा होता है. तो ये कुछ ये स्टाइल है नेम को लिखने का, दैट इज. तो शायद वो उसी तरीके से यहाँ पे हमने क्या है कि लास्ट नेम और उसको फिर यहाँ पे ऐड किया है. एक्चुअली कुछ कंट्रीज में क्या होता है कि जो फर्स्ट नेम होता है वो एंसेस्ट्रल नेम होता है, पेरेंट नेम होता है, फिर जो लास्ट नेम होता है वो एक्चुअल नेम होता है. और उनका पता लग जाएगा. सो यहाँ पे दो कॉलम को ऐड किया गया. तो जरा जल्दी से मुझे ये पहले ये वाली क्वेरी रन कराइए, उसके बाद मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मर्ज करके प्रिंट कराएंगे. फैंटास्टिक. आई थिंक आदर्श ने ये कर दिया, बट मैं चाहूंगा आप सब लोग खुद से ट्राई करिए जरा. फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को एज अ नेम प्रिंट कराइए एम्प्लॉय से. तो आदर्श मैं आपका यूज कर रहा हूँ, बट मैं चाहूंगा आप सब लोग खुद से ट्राई करेंगे, खुद से. फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम एज नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज. और ये बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है. अच्छा, मेरा असाइनमेंट है
कि अगर मैं आपसे बोलूं मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में एक स्पेस भी चाहिए, आई नीड अ स्पेस एज वेल। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस चाहिए, तो क्वेरी क्या बनेगी? जरा थोड़ा सोचिए और एक्सपेरिमेंट करिए और रन करके फिर मुझे बताइए। यस नारायण, आपका क्वेरी ठीक है, बट अब नारायण जरा जल्दी से मेरे को आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को कॉन्कैटिनेट तो करिए, लेकिन कुछ ऐसा करिए कि दोनों के बीच में स्पेस भी आ जाए। ऐसी क्वेरी बनाइए जिससे दोनों के बीच में स्पेस भी आ जाए। ओके, वेरी गुड। और मेरे को सबमिट करने से पहले मैं चाहूंगा एक बार खुद से रन करके पहले ट्राई करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे कि क्या आपका लॉजिक चल पा रहा है, एंड देन उसके बाद चेक करेंगे। वैसे ये मैंने बताया नहीं, लेकिन इसको करने के लिए मैं ऑलरेडी लॉजिक समझा ही चुका हूँ आपको। थोड़ा सा सोचना है आपको, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। जो मैं बोल रहा हूँ वही कर दीजिए, जो 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 जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वही कर दीजिए, अपने आप हो जाएगा। मुझे बताइए। यस ओवैस, फैंटास्टिक, बिल्कुल सही। सो यहाँ पर देखिए जरा, कुछ ऐसा मैंने लिखा है। कुछ ऐसा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसको मैं सेलेक्ट करके रन कर रहा हूँ। तो अब देखेंगे कि आप नेम के बीच में स्पेस आ गया। नाउ वी आर गेटिंग द नेम स्पेस। तो इससे क्या हुआ देखिए, पहले फर्स्ट नेम और ये इनके बीच में एडिशन हुआ, और जो रिजल्ट आया उसका एडिशन लास्ट नेम से हो गया, उसका एडिशन लास्ट नेम। ओके, मुझे बताइए, अगर मैं बोलूं कुछ ऐसा करिए कि इन सारे नेम के पहले ये लिख करके आए, इन सारे नेम के पहले ये लिख के आए कि एम्प्लॉय नेम इक्वल टू ओके। आई थिंक यस, एक चीज और मेरे को ओएस ने बताई अभी कि यहाँ पे अगर हम डबल कोट्स लिख रहे हैं ऐसे, तो लाइक आई एम सेलेक्टिंग इट, आई एम रनिंग इट। सो ओएस ने कहा है कि अगर आप ऐसे एम्प्टी कर रहे हैं तो वो वर्क नहीं कर रहा है। तो अगर आपको स्पेस देना है तो अगर आपको स्पेस देना है तो समथिंग लाइक दैट आपको सिंगल कोड में ही देना पड़ेगा। अच्छा मुझे बताइए, कोई कोई प्री डिफाइंड अगर हम अपना कोई वर्ड देते हैं यहाँ पे, लाइक इसके पहले मैंने कहा एम्प्लॉय नेम इक्वल टू, एम्प्लॉय नेम इक्वल टू कुछ ऐसा मैं अगर कर दूं, और तो क्या ये वर्क करेगा? जल्दी से सब लोग करके देखिएगा। और इसमें एक छोटा सा लेकिन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये कर रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है कि सबके पहले ये लिख के आ रहा है एम्प्लॉय नेम, इस तरह से ऑप्शन आ रहा है। तो ये जो डबल कोड्स है बेसिकली हम लोग निकनेम के लिए यूज करते हैं। अगर आपको कुछ और ऐड करना है अपना, तो आप सिंगल कोड में उसको ऐड कर सकते हैं।
Yes, right, fantastic. So, जरा जल्दी से बताइए. नाउ ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर क्लियर है सबको? ओके, सो यहाँ पे इसने ये बोला है कि it said कि the is represented by two vertical bars. It creates a resultant column that is character expression. तो इसी को बोलते हैं character expression. That is known as कैरेक्टर एक्सप्रेशन. तो हमने इससे पहले न्यूमेरिक एक्सप्रेशन देखा था, उसके बाद कैरेक्टर एक्सप्रेशन, देन उसके बाद लिटरल कैरेक्टर स्ट्रिंग. ये एक टर्म कॉन्सेप्ट है. तो यहाँ पे पहले तो एक वर्ड समझना पड़ेगा आपको. एक ये टर्मिनोलॉजी है. दिस टर्मिनोलॉजी इज लाइक कि लिटरल क्या होता है. तो लिटरल का मतलब है कि कोई भी कैरेक्टर या कोई भी नंबर या कोई भी रेट जो सेलेक्ट स्टेटमेंट में लिखा गया हो. तो सेलेक्ट में कुछ भी लिखा गया हो वो एक लिटरल का मतलब होता है वैल्यू. लिटर मीन्स वैल्यू. तो मतलब सेलेक्ट में कुछ भी लिखा गया हो, चाहे वो कोई कैरेक्टर लिखा गया हो, कोई नंबर लिखा गया हो या डेट लिखा गया हो. एंड डेट एंड कैरेक्टर लिटरल वैल्यू मस्ट बी इनक्लोज्ड बाय सिंगल कोटेशन मार्क. ध्यान सुनिए, डेट और कैरेक्टर लिटरल. कैरेक्टर मतलब कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हैं तो डेट और टेक्स्ट तो सिंगल कोड में होना चाहिए. तो अभी हमने आपको बताया था डबल कोड में क्या होता है. डबल कोड में एलियास होता है, निकनेम होता है. लेकिन उसके अलावा जो बाकी आपको टेक्स्ट देंगे वो सिंगल कोड में देंगे. डेट देना हो तो सिंगल कोड में देंगे. एंड ईच कैरेक्टर स्ट्रिंग इज आउटपुट वंस फॉर ईच रो रिटर्न. Each character string is output once for each row return. इसी का तो हमने आपको प्रैक्टिकल कराया था, जो एम्प्लॉय नेम वाला. तो यहाँ पे क्या है देखिए समझिए. लास्ट नेम ये फिजिकल कॉलम है, जॉब आईडी ये फिजिकल कॉलम है. लेकिन जो फिजिकल कॉलम ना हो और एलियास भी ना हो तो वो एक लिटरल है. और लिटरल अगर कैरेक्टर या डेट है तो दैट मस्ट बी इन सिंगल कोड. तो पहला लास्ट नेम इज फिर जॉब आईडी लिख के आएगा. और इस पूरे एक्सप्रेशन का जो निकनेम बनेगा, इससे जो रिजल्ट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्लॉय डिटेल्स. जरा जल्दी से सब बच्चे रन करा के देखिए. यहाँ पे देखिए आउटपुट क्या आ रहा है. आउटपुट आ रहा है जैसे लास्ट नेम किंग था तो लिखा रहा किंग इज एड अंडरस्कोर प्रेस. एड अंडरस्कोर प्रेस ये जॉब कोड था. तो इसका मतलब है क्लियरली लिखा गया है. क्या लिखा गया, अच्छा ये चीज जो लिखा गया ना कि कैरेक्टर लिटरल, ये एवरी रो पे अप्लाई होगा, एवरी रो पे. इसलिए जरा सिंटैक्स में देखिए क्या लिखा हुआ है कि ईच कैरेक्टर स्ट्रिंग इज आउटपुट वंस फॉर ईच रो. एवरी रो के लिए वो चीज काम करेगी. मुझे बताइए सब बच्चे, ये लास्ट पॉइंट में आ रहा है क्या? आर एबल टू गेट द लास्ट पॉइंट प्लीज? अच्छा सिमरन नहीं समझ में आया. ओके सिमरन, मैं कह रहा हूं कि इसको कि हम अपनी क्वेरी में कोई ऐसा टेक्स्ट लिख दें जो कॉलम ना हो. तो मुझे इज आ नाम का कोई कॉलम है क्या एम्प्लॉय में? सिमरन मुझे बताइए, इज आ नाम का कोई कॉलम है क्या एम्प्लॉय टेबल में? इस नाम का तो कोई कॉलम नहीं है. तो मैं कह रहा हूं इस नाम का जब कॉलम नहीं है तो ये एक लिटरल वैल्यू है. क्या है? एक वैल्यू, एक टेक्स्ट है. लिटरल वैल्यू मतलब टेक्स्ट है ये छोटा सा.
तो ये कह रहा है कि लास्ट नेम वाले कॉलम में से एक वैल्यू उठाएगा और उसको उसी रो के जॉब आईडी के साथ मर्ज करेगा, लेकिन बीच में ये वैल्यू ऐड करेगा। और ये काम इस एम्प्लॉय टेबल के एवरी रो के लिए करेगा। तो देखिए जो इज अ है, इज अ इस वाली रो में भी प्रिंट हो रहा है, इसमें भी प्रिंट हो रहा है, इसमें भी प्रिंट हो रहा है। तो इस सारी रो के लिए काम कर रहा है। चेक करिए यहाँ पे इज अ, इज अ, इज अ, इज अ, इज अ, इज अ। इसका मतलब है इस वाले कॉलम की वैल्यू को इस वाले कॉलम के साथ ऐड करेगा, बीच में ये इंसर्ट करेगा, और ये काम इस टेबल की एवरी रो के लिए करेगा। हर रो के लिए ये काम एक बार ऐड करेगा, हर रो में ऐड करेगा। सिमरन मुझे बताइए नाउ, अब आर यू ओके विद दैट? ओके सक्षम प्लीज गिव मी कंफर्मेशन, क्या अब ये आप कंफर्टेबल हैं इस लॉजिक में? सक्षम प्लीज गिव मी कंफर्मेशन, एक बार मुझे बता दिए। ओके वंडरफुल। तो सक्षम मुझे ये बताइए, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो अब जरा इस स्टेटमेंट को रीड करिए। रो लाइन नंबर 3, मैंने यही पूछा था कि लाइन नंबर 3 को अब रीड करिए और मुझे बताइए क्या अब ये लाइन नंबर 3 का मीनिंग समझ में आ रहा है? अब बताइए सब लोग मुझे। ओके सक्षम एंड सिमरन प्लीज टेल मी, बाकी सब लोग मुझे बताइए ये थर्ड पॉइंट सबको समझ आ रहा है अच्छे से? 100% समझ आ रहा है? आर यू गेटिंग 100%? यस, वो एवरी इंस्टेंस में, राइट। उत्तम एक्चुअली इंस्टेंस नहीं बोलेंगे हम, इंस्टेंस की जो रो होती है उसके लिए एक टेक्निकल टर्म होता है ट्यूपल। राइट, हम लोग क्या बोलते हैं उसको? ट्यूपल बोलते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, अच्छा रवि नहीं समझ आया आपको? ओके फिर से बता दें। ओके अच्छा ओके। सो रवि एक काम करते हैं, मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल से समझाता हूँ, ठीक है रवि? आपको प्रैक्टिकल से बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। रवि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत छोटा सा एक चीज ले लेते हैं हम, लाइक दैट। सिर्फ रवि आई थिंक ये क्वेरी तो क्लियर है आपको? ये कह रहा है फर्स्ट नेम वाले कॉलम का सारा डेटा प्रिंट करेगा एम्प्लॉय टेबल से। आई थिंक ये तो बिल्कुल क्लियर है रवि। ये कह रहे हैं एम्प्लॉय टेबल में से फर्स्ट नेम वाले कॉलम का सारा डेटा निकल के आ रहा है। यहां तक क्लियर है? ओके फैंटास्टिक। तो मैंने कहा जैसे ये वैल्यू आ रही है ना, डोनाल्ड, डगलस, इन सारी वैल्यूज के पहले मैंने कहा जो कुछ भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा रवि, कुछ मैंने लिखा रवि इक्वल टू, और यहाँ पे पाइप सिंबल लगा दिया। तो मैं कह रहा हूँ ये जो लिटरल वैल्यू है, लिटरल क्यों बोला? क्योंकि इस नाम का कोई कॉलम नहीं है। और रवि यहाँ तक क्लियर कि इस नाम का कोई कॉलम नहीं है। तो अगर ये कॉलम नहीं है तो ये क्या है? ये लिटरल है, टेक्स्ट है। तो ये वाला जो टेक्स्ट है इस फर्स्ट नेम वाले कॉलम की एवरी रो में अपेंड होगा। ये तो डबल कोट, ये जो डबल है ये तो एडिशन का है कि रवि वाली वैल्यू इस कॉलम के हर वैल्यू में ऐड होगा। तो अब जब हम इसको रन कराएंगे, राइट रवि, तो अब देखिए क्या हो रहा है, रवि इक्वल टू रवि इक्वल टू रवि इक्वल टू। तो ये जो लिटरल है इस कॉलम की एवरी रो के लिए वर्क कर रहा है। ओके अच्छा, अब ये समझ में आ गया। लेकिन मुझे बताइए ऊपर हेडिंग तो बड़ा गंदा सा आ रहा है ना रवि? मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? कि ये तो ठीक है लेकिन ऊपर हेडिंग तो गंदा सा आ रहा है, तो इसको बदलने के लिए क्या करेंगे? इसको बदलने के लिए एज मैंने कहा
डबल कोट्स में नेम, या डबल कोट्स में मैंने कर दिया एम्प्लॉय नेम, डबल कोट्स में लिख दिया एम्प्लॉय नेम, और अब मैं करूं तो क्या होगा, आउटपुट तो वही आएगा ऑलराइट रवि, लेकिन आउटपुट में जो ऊपर हेडिंग है, जो गंदा सा हेडिंग आ रहा था, अब वो नीट एंड क्लीन नेम हो जाएगा। ओके रवि, सो अगर आपको ये समझ में आ गया तो मुझे ये अब बताइए रवि कि क्या, अब जरा इस लास्ट लाइन को रीड करिए कि जो वो कैरेक्टर स्ट्रिंग था वो आउटपुट होगा वंस फॉर एवरी रो, हर रो पे वो अप्लाई होगा। नाउ आर यू ओके विद दैट रवि? नाउ 100% इज ओके? क्या मैं अज्यूम कर लूं 100%? ओके, ऑलराइट, फैंटास्टिक। सो नाउ अब सारे 100% स्टूडेंट्स को 100% कॉन्सेप्ट आ चुका है। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। तो फैंटास्टिक, तो यही वाली चीज क्वेरी यहाँ पे रवि लिखी थी, आई थिंक आप समझ रहे होंगे। लास्ट नेम और जॉब आईडी के बीच में ये टेक्स्ट एवरी रो में अपेंड होगा और हेडिंग आएगी एम्प्लॉय डिटेल, तो एम्प्लॉय डिटेल हेडिंग है और इज सब में ऐड हो रहा है। तो जैसे हमने रवि को ऐड किया था वैसे यहाँ पे इज आ को ऐड किया, तो इज आ हमारा कोई एक्चुअल फिजिकल कॉलम नहीं है ये। एक थोड़ा सा और एडवांस कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट एक और सीखना है हमको। एक ऑल्टरनेटिव कोट, जिस ऑपरेटर बोलते हैं क्यू ऑपरेटर या कोट ऑपरेटर, ऑल्टरनेटिव कोट ऑपरेटर या क्यू ऑपरेटर, ये थोड़ा सा एक एडवांस कॉन्सेप्ट है। ये क्या कह रहा है, स्पेसिफाई योर ओन कोटेशन मार्क डेलिमीटर, राइट, चूज एनी डेलिमीटर। इमेजिन करिए जो टेक्स्ट ऐड करना था उस टेक्स्ट में पहले से ही सिंगल कोड लगा हुआ था। मैंने कहा कि मुझे ये जो टेक्स्ट था, मैंने कहा इट इज असाइंड मैनेजर आईडी इक्वल टू, तो ये मैसेज ऐड करना था। तो क्या होगा, अगर मैं सिंगल कोट्स ओपन करूंगा तो इस वाले सिंगल कोड को ही वो क्लोजिंग सिंगल कोड मान लेगा, जबकि ये वाला सिंगल कोड इस वाले सिंगल कोड का क्लोजिंग नहीं है। ये तो सिंगल कोड बीच में, ये तो हमें स्क्रीन पे प्रिंट करना है, देखिए इट्स प्रिंट करना है, इट्स प्रिंट करना है। तो जब हमें जो बीच में टेक्स्ट ऐड करना, उस टेक्स्ट में ही अगर सिंगल कोड आ रहा है, एक बार फिर से समझिए, फिर से थोड़ा पीछे चलते हैं थोड़ा सा। ये अभी देखिए, जो हमारा स्ट्रिंग लिटरल था, मैंने बोला उसको किस में रखते हैं, सिंगल कोड में, लेकिन मैं बोला सिंगल कोड के बीच में जो टेक्स्ट था उस टेक्स्ट में ही एक सिंगल कोड आ गया, तो क्या होगा, जैसे जैसे देखो मैंने कहा ये जो है, इसमें सपोज बीच में सिंगल कोट्स होता, यहीं पे अंदर सिंगल कोट्स होता, तो हमारा ओरेकल कंफ्यूज होता, उसको लगता है कि ये वाला स्टार्टिंग है और ये वाला एंडिंग है और ये बाहर पड़ा हुआ है, उसे लगता है कि ये इतना एक्सप्रेशन बाहर पड़ा है और ये अनबैलेंस्ड है, ये वाला कोड अनबैलेंस्ड है, तो उसे लगेगा कि यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पे एंड हो गया है। तो हमें ओरेकल को बताना होगा कि हमारे एक्सप्रेशन के बीच में जो सिंगल कोड है उसे एंडिंग मत मानना। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए हम ये सिंगल कोड सिंबल नहीं लेंगे, इसके बदले कोई दूसरा सिंबल लेंगे, कोई दूसरा कोटेशन मार्क लेंगे। मैंने कहा मैं कोटेशन मार्क स्क्वायर ब्रैकेट लेना चाह रहा हूँ, मैं इसके बदले क्या लेना चाह रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट लेना चाह रहा हूँ। एक बार फिर से समझिए, मैंने कहा मैं इसके बदले स्क्वायर ब्रैकेट लेना चाह रहा हूँ, तो स्टार्टिंग और एंडिंग में स्क्वायर ब्रैकेट। तो अभी हमारा स्टार्टिंग एंडिंग कैसे बता रहे थे, सिंगल कोड से, ये इससे स्टार्टिंग हो रही थी, इससे एंडिंग हो रही थी, बट मैंने कहा मुझे स्टार्टिंग और एंडिंग इससे नहीं बताना है, स्टार्टिंग और एंडिंग इससे नहीं बताना है हमको।
तो स्टार्टिंग एंडिंग के लिए ये सिंबल यूज नहीं करना है, तो मुझे कुछ और यूज करना है। तो कुछ और क्या यूज करना है सिंगल कोड के बदले? सिंगल कोड के बदले हमें कुछ और क्या यूज करना है? उसके लिए ये होता है कोट्स ऑपरेटर। तो क्यू के बाद लिखा है कि क्यू ऑपरेटर के बाद लिखा है कि हम जो है कॉमा, ये जो सिंगल कोड था हम ये सिंगल कोड यूज नहीं करेंगे, सिंगल कोड के साथ साथ ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। तो सिंगल कोड और स्क्वायर ब्रैकेट जब दोनों मिलेंगे तो उससे वो समझेगा कि यहाँ पे एक्सप्रेशन स्टार्ट हुआ है। तो इस सिंगल कोट और स्क्वायर ब्रैकेट ये ओपनिंग है, और स्क्वायर ब्रैकेट और सिंगल कोड ये क्लोजिंग है। तो बीच में अगर कहीं पे केवल सिंगल कोड मिल गया बिना ब्रैकेट लगे तो समझ जाएगा ये तो अंदर टेक्स्ट का ही पार्ट है। तो देखिए ये वाला जो कॉमा है, ये कॉमा और ये इन्वर्टेड कॉमा, ये दोनों ही टेक्स्ट का पार्ट है। तो इसलिए देखिए प्रिंट हो रहा है तो कॉमा भी आ रहा है नीचे, और ऊपर एपोस्ट्रॉफी वाला कॉमा भी प्रिंट हो रहा है। तो क्यू ऑपरेटर बताता है कि हम बिगनिंग जो कोट से करते थे हम केवल कोट्स न लगा के कोट के साथ स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज करेंगे। थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है थोड़ा, लेकिन मैंने तो आपको बोला था ना जैसे जैसे हम आगे सीखेंगे थोड़ा सा हमारा लॉजिक का कॉम्प्लेक्सिटी ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, डिपार्टमेंट नेम को मैनेजर आईडी के साथ जोड़ेगा। बस हो यही रहा है कि डिपार्टमेंट है मार्केटिंग, और उस मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर कौन है, 201। उस डिपार्टमेंट मार्केटिंग का मैनेजर कौन है, 201। तो यही लिखा हुआ है कि मार्केटिंग इट इज असाइंड मैनेजर, क्या इट्स असाइंड मैनेजर आईडी इज 201। तो कॉमा से लेकर के यहां तक का पूरा एक्सप्रेशन ये टेक्स्ट लिटरल था। तो टेक्स्ट लिटरल था, तो हमने वही बताया कि हम सिर्फ कोड से काम नहीं चलेगा, क्यू कोड्स, क्यू और कोट्स के बाद आप अपने पसंद का कोई भी एक ओपनिंग ब्रैकेट, कोई भी टाइप का ब्रैकेट चूज कर सकते हैं। इसके बदले आप करली ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं। तो जहां पे क्लोजिंग करली ब्रैकेट के साथ कोट मिलेगा उतना पूरा टेक्स्ट वो बार बार रिपीट करेगा। जरा जल्दी से ये वाला क्वेश्चन इस वाले को प्रैक्टिकल करके बताइए मुझे, क्या ये वर्क कर रहा है? हाँ, अगर ब्रैकेट के अंदर क्यू लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो क्यू तो सिर्फ ये बता रहा है कि हम इस क्वेश्चन मार्क, इस कोटेशन को हम सिर्फ नहीं देखेंगे, कोटेशन के साथ ब्रैकेट भी देखेंगे एंडिंग के लिए, कि एंडिंग ब्रैकेट मिले और फिर कोटेशन मिले। अच्छा, एक बार कोटेशन के बाद मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के बदले अगर कर्ली ब्रैकेट लगाया होता तो क्या समझता कि हम केवल कोटेशन ही देखेंगे, फिर हम क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट और फिर कोटेशन देखेंगे, दोनों पेयर देखेंगे। तो जहां पे दो पेयर मिलेगा वो पूरा टेक्स्ट ऐड करेगा। तो देखो कोलन के बाद स्पेस भी है, तो इसलिए लिखेंगे आप कोलन के बाद स्पेस भी प्रिंट कर रहा है। और मैंने ये 3 लाइनों में इसलिए लिखा है कि आपको ये एक्सप्रेशन अलग से समझ में आ जाए। आप ये चाहें तो पूरा सेलेक्ट का 1 2 3 4 ये चारों लाइन आप एक ही लाइन में टाइप कर सकते हैं। यस, यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट कोई भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। जब ट्राई करके देखिए क्या ये चल रहा है क्या, पहले इसको रन कराइए, और अगर ये रन हो रहा है तो मुझे इसकी क्वेरीज जरा भेजिए प्राइवेट में। फैंटास्टिक।
I think Saksham has done, Narayan has done, Chetan has done, Wes has done. Yes, indentation जरूरी नहीं है. Yes, yes, yes. Sorry, I forgot that question. Yeah, indentation जरूरी नहीं है. या आप एक ही लाइन में लिख सकते हैं. मैंने बोला ना, मैंने आपको अलग अलग लाइनों में लिखा है सिर्फ समझाने के लिए. But indentation is not required. Yes, Wes, perfect. Right. Well done. तो जरा एक बार मैं रन करके चेक करता हूँ आप पे से. आई एम यूजिंग चेतन, मैं आपका लॉजिक यूज कर रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू कॉपी योर लॉजिक. और मैं जरा चेक करता हूँ रन करा के. सो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ. वो कोई जरूरी नहीं है, बस थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगेगा और वो इजीली. सो मैं ये इसको रन कराने जा रहा हूँ. ये मैंने आप में से एक स्टूडेंट का ही कोड कॉपी किया हुआ है. सो मैं रन कराने जा रहा हूँ. अच्छा, मुझे जरा जल्दी से बताइए, इस स्क्वायर ब्रैकेट को चेंज करके करली ब्रैकेट कर दे तो क्या ये कोड चलेगा क्या? ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट, जल्दी से बताइए चेक करके क्या हो रहा है क्या? ओके. और आई थिंक रॉबिन हैज कंफर्म कि वर्क कर रहा है. तो मैं चाहता हूँ एक बार जरा राउंड ब्रैकेट को चेक करके बताइए क्या राउंड ब्रैकेट काम कर रहा है क्या, या राउंड ब्रैकेट एरर दे रहा है. चेक करिए. आई थिंक वैसे तो सारे ब्रैकेट काम करते हैं, बट फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं. राउंड ब्रैकेट काम तो करता है, लेकिन अभी यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन पे ऑरेकल के चेक करते हैं. ओके, लेटेस्ट वर्जन पे भी काम कर रहा है ये. तो इस नए वाले वर्जन पे भी काम कर रहा है. तो इट इज वर्किंग लाइक दैट. ओके, वेल डन जाएगा. ऑलराइट. ओके, फैंटास्टिक. सो जरा मुझे बताइए, आज जितना कुछ हमने सीखा, क्या सारा कंटेंट कंप्लीटली 100% सबको समझ आ गया? प्लीज राइट इट डाउन 100% अगर सबको समझ आ गया तो. ओके, वेल डन, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक. ओके, फैबुलस, फैंटास्टिक. ओके, और अब आपने देखा होगा धीरे धीरे अब आपकी नंबर ऑफ जो एरर्स हैं क्वेरी को टाइप करने में, जैसे जैसे अब आप फेमिलियर होते जाएंगे, आपकी एरर्स भी धीरे धीरे कम होती जाएंगी. फैंटास्टिक. यस विकास, फैंटास्टिक. बस बस उतना ही चाहिए. जितना मैंने कहा, जितना हमने समझा, अगर उतना आ गया, दैट्स ऑल. जैसे एक बड़ी सी मंजिल पे जाने के लिए हमें एक एक करके स्टेप सीखना होता है ना. एक एक छोटे छोटे स्टेप, बहुत बड़ा नहीं करना होता है. छोटे छोटे स्टेप्स, रोज कुछ नया सीखना है, रोज कुछ नया सीखना है, और आपका लेवल अपने आप अप होता जाएगा, अप होता जाएगा. राइट, दैट शुड बी द प्रिंसिपल कि डेली हम थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा थोड़ा. अगर आप, मैंने कहा डेली सीढ़ी पर थोड़ा थोड़ा चढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा चढ़ेंगे, तो भी आप आगे बढ़ेंगे. ऑलराइट, तो आज के लिए हम इतने रखते हैं. थैंक यू सो मच.